दिल्ली में आर्बिट्रेशन वीकेंड 2025 का आगाज हो गया है और इसका शुभारंभ करते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा, भारत वैश्विक मध्यस्थता का केंद्र बन रहा है। सीजेआई गवई ने भी कहा कि दिल्ली आर्बिट्रेशन वीकेंड दुनिया का शायद इकलौता ऐसा मंच है जिसे किसी देश की न्यायपालिका आयोजित करती है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यस्थता का इतिहास बहुत पुराना है और यह हमेशा से विवाद निपटाने का एक भरोसेमंद साधन रहा है। रिपोर्ट देखिए और समझिए। दिल्ली में आर्बिट्रेशन वीकेंड 2025 का आगाज, भारत बन रहा वैश्विक मध्यस्थता का केंद्र। दिल्ली आर्बिट्रेशन वीकेंड दुनिया का इकलौता ऐसा मंच जिसे किसी देश की न्यायपालिका करती है आयोजित। मध्यस्थता का इतिहास बहुत पुराना, विवाद निपटाने का भरोसेमंद साधन। उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीजेआई बीआर गवई। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय भी साथ। गेस्ट ऑफ ऑनर ऑस्ट्रेलिया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस स्टीफन गेगलर भी साथ। यस्सी दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की ओर से मेजबानी। ये सभी मिलकर एक ऐसे कार्यक्रम की नींव रख रहे हैं जो उच्च स्तरीय चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देगा। कार्यक्रम में सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई को शॉल भेंट कर उनका वेलकम और अभिनंदन किया। गेस्ट ऑफ ऑनर ऑस्ट्रेलिया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस स्टीफन गेगलर को भी सम्मानित किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करने का सबसे पहले अवसर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को दिया गया। डीके उपाध्याय के बाद गेस्ट ऑफ ऑनर ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस स्टीफन गेगलर ने अपनी बातें रखी। इस मौके पर पुस्तक का विमोचन भी किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के लिए जब मंच की तरफ से भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई बढ़े तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा। सीजेआई बीआर गवई ने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुझे 20 देशों से आए गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक और विशेष स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, जो अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित कर रहे हैं। इसका उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। In my capacity as the Chief Justice of India, it is my pleasure to extend you a warm welcome to the dignitaries and the delegates from over 20 countries across the globe who honor us with their presence today. It's a matter of great pride for me to inaugurate the third edition of this remarkable event, the Delhi Arbitration Weekend, and to see it evolve into a truly global forum for dialogue, exchange, and collaboration in the field of arbitration. I won't take long because today is a Thursday and I see many lawyers present here in the gathering, and my learned colleagues also. Friends, this is not an ordinary gathering. I think Delhi Arbitration Weekend has a rare exception. And in my knowledge, perhaps the only arbitration gathering hosted by a judiciary of a country. It must be the only event which is jointly organized by the highest court of the country and the High Court of Delhi. It is not often that you find judges inviting lawyers to talk more rather than less. Arbitration, as we all know, is one of those deceptively simple words that lawyers can spend lifetime debating. At its core, arbitration is an age-old human instinct of resolving dispute by entrusting a neutral third party rather than leaving the conflict to fester. As in India, we know that we are having the age-old panchayat system, which could be said to be a foundation of the arbitration. And we also have a merchant guilds in medieval Europe, from the Amitu process of Maasai tribe in Africa to the traditional dispute settlement methods used by Aboriginal societies of Australia. Here I must also acknowledge the Australian arbitration regime with its deep-rooted engagement with customary and modern forms of arbitration, reflecting a long-standing respect for consensual dispute resolution. Most cultures and communities across times have devised their own procedures
and practices of arbitration. In many ways, the development of arbitration precedes the development of formal court systems. In the last 80 years, the era after the World War II has seen the development of a largely harmonized global order of arbitration for resolution of commercial disputes. Post-World War II period marks the true beginning of international arbitration as we know it today. The New York Convention of 1958 became the cornerstone, ensuring that arbitral awards could travel across the borders with relative ease. उन्होंने हाल के वर्षों में भारत में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए बताया कि दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर DIAC जैसे संस्थान अब वैश्विक मानकों पर काम कर रहे हैं। 2024 में DIAC ने 1915 मामलों का निपटारा किया और 15,000 से अधिक सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हालिया फैसलों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये संदेश दिया कि भारतीय न्यायपालिका अब हस्तक्षेपकारी नहीं बल्कि सहायक भूमिका निभा रही है। CJI ने कहा कि भारत की न्यायपालिका और संस्थान मिलकर मध्यस्थता को और मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने छोटे और मध्यम उद्यमों MSME को भी समान अवसर देने, मध्यस्थता को सस्ता और सुलभ बनाने और अनावश्यक मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करने पर जोर दिया। CJI ने अपने समापन संदेश में कहा कि भारत अब वैश्विक मंच पर उभरता हुआ मध्यस्थता केंद्र है। नई दिल्ली को लंदन, सिंगापुर और जिनेवा जैसे स्थापित हब्स के साथ पहचाना जा रहा है। हमें इस विश्वास को और गहरा करना है और भारत को दुनिया का अग्रणी मध्यस्थता गंतव्य बनाना है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित न्यायविद, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ, संस्थागत नेता, नीति निर्माता और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र और अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय समेत प्रमुख वैश्विक संस्थान शामिल होंगे। सम्मेलन में पैनल चर्चा, ऑक्सफोर्ड शैली की बहस और विविध विषयों को कवर करने वाले सत्र शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।